one is my husband. He is businessman. Second one, uh, my son. I have one kid. His name is Adi. I calls him always Adu. Um, but when he watches Little Krishna, he always says to me, "Mama, please call me Krishna." Then, uh, sorry, uh, when I call him Krishna, he calls me Yashoda Maiya. uh, and last one, me. Uh, I like uh, I like to play cricket with Adi. Sometimes I like gardening. Uh, क्या बताऊँ? My favorite actor is my husband. My favorite actress uh, is Madhuri Dixit, and my blood group is B positive. I'm postgraduate. My sun sign is Scorpio. Yes. Nidhi, I want to ask you one question. Can you drive? Nidhi, am I audible to you? Yes, sir. Can Yes, you? sir. I can drive, sir. Okay, tell me and tell them how many vehicles, how many cars have you driven so far? Sir, all types car Okay. I drive. हाँ ऑटोमेटिक भी एंड ये क्लिच वाली भी ऑल में ऑल मतलब फोर व्हीलर बड़ी भी हो छोटी ऑल टाइप्स. Guys, I would like to inform you when Nidhi used to come here in offline batch, she used to drive to the class. So it was first time for me, so I was very happy to see and proud. So now, Manaji will just give the intro and she will not be active participant during the class. So I would like to invite Manaji to give intro. Thank you so much, sir, to give me this opportunity. First of all, good evening, everyone. I'm Manya Advani. I'm a homemaker. Basically, I'm from Raipur, but after marriage, I shifted to Nagpur. I'm blessed with two children. Elder one is 12 years. His name is also Adi Nidhi. Actually, his name is Adarsh, but his pet name is Adi. And I also call him Adu. And my younger one is 6 years old. His name is Ayush. Elder one is in class six, and younger one is in class second. And I am in a little joint family. There are six family members: my husband, me, my both children, and my father-in-law and mother-in-law. And my husband is a businessman. He takes government tenders of school uniforms. And my hobbies are cooking, listening music. That's all about me. Thank you so much. Who is rest for intro? Nisha is rest. Please Nisaji break the ice. Okay. Hello friends, I am Nisha Patel from Belkadu. My husband name is Mr. Neil Patel. I have two daughters. My elder daughter's name Vadi Patel. My young daughter's name Pavni Patel. My zodiac sign Cancer. My blood group O positive.
My hobbies are watching movie, play chess with my daughter. My favorite is pani puri. Okay, there. Thank you. Everybody's done. अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी हिंदी भाषा में, इंग्लिश का प्रतिबंध नहीं है। आज ब्रह्मांड में जो एक अभूतपूर्व घटना हुई उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लो ना। दीपिका, नम्रता, जरा इनको शेयर करो उस ब्रह्मांड में हुई अभूतपूर्व घटना के बारे में। चंद्र ग्रहण ना दीपिका? आई थिंक सो सर, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, चंद्र ग्रहण। नहीं बेटा, मैं चंद्र ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूँ। नम्रता ओके तुम ओके सर, ओके 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 ओके। नम्रता, हमने नम्रता दीपिका का नाम क्यों लिया? शिवांग ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, अभी घर पहुंचा नहीं होगा। आज हम लोग झलक सर क्लास गए थे और मैंने वहाँ गाना गाया। ये मेरे लिए एक रिमार्केबल थिंग थी। Which सर one song? Namrata, which one song? I have sung two songs. First one that Ye Sama from Lata Mangeshkar, and second one is that La Isla Bonita. इंग्लिश सॉन्ग। song. दीपिका कम समय दे पाई क्योंकि बच्चे ट्यूशन में थे, तो इस तरह सर से एक एक्चुअली दिन सभी का था हम लोगों का प्लान आने का, निशा का, रोशनी का, निधि का, पर ये लोग नहीं आ पाए किसी कारण से। अदरवाइज हम सभी का प्लान था, सबको जानकारी है कि हम आने वाले थे करके। तो इसको किसी और दिन एग्जीक्यूट कर लेंगे। वी विल एग्जीक्यूट एनी अदर डे। ओके Sir, one more thing I would like to say. इरशाद। I have enjoyed a lot, and it was a very great day when I see sir and ma'am. नाउ शिवांग हैज कम, पहुंच गया पाटन, और नाउ ही हैज जॉइंड। हमने बोला था ना, बस लेट हो ही जाती है। आप अपने इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो बस के हिसाब से चलना होता है। चलिए दोस्तों, शिवांग, हैव यू रीच्ड होम? No, sir, I'm on the way. Oh, he is on the way. He's in the bus. Okay, so if you get chance to speak, if there is no disturbing noise, you can speak. Otherwise, you can be mute as you wish. Okay, let's come to the point. Deepika, what was the last verb? सर द लास्ट वर्ब वाज फेस एग्जाम्स। ये एडिशनल थी। निधि, कैन यू टेल मी? और नम्रता, कैन The यू? Sir, the last verb was fake. That is झूठ बोलना. Your voice was not clear, Namrata. Please come again. Sir, the last verb was fake.
That is झूठ बोलना. Okay. Deepika. I would like to give the answer. Namrata, you ask. Okay, I'm asking Didi. Deepika Didi, Okay. what should be the verb for बर्बाद करना? The verb for बर्बाद करना should be ruined. Namrata, what should be the second? Okay, spoil. Okay, spoil. Namrata, what should be the verb second form of spoil? The second form of spoil should be spoiled. Nidhi, what should be the third form of spoil? The third form of spoil should be spoiled. अब अगला सवाल मैं कर लेता हूँ. हु इज रेडी टू आंसर? जिसने ना दिया है प्लीज स्पीक. Sir, I'm ready. Soumya, what should be the another second form of spoil? Sir, the another second form of spoil should be sir ruined. Sir, can दोस्तों, कुछ क्रियाओं के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दो दो होते हैं, दोनों प्रचलन में होते हैं, जिसको जो प्रयोग करना है. तो सौम्या, तुम यही सवाल नेहा से कर लो. Yeah, Didi, what is the another second form of spoil? The another second form of spoil is spiled. Spiled. Nisha Didi, spiled. Nisha Didi, what is the second verb for spile? Roshni Didi, what what should be the verb for वापस आना? Namrata Didi, what should be the verb for वापस आना? The verb for वापस आना should be return. Deepika, what should be the verb for वापस आना? the verb for वापस Sorry, आना Namrata, sorry, come again. No, it will do. I got it. Carry on, carry on. the verb for वापस आना should be come back. Nidhi, what should be the second form of come back? The second form of comeback should be came back. Shivang, what should be the third form of comeback? Shivang, what should be the third form of The third comeback? form of comeback should be comeback. Sonika Didi, what should be the another verb for वापस आना? सौम्या दीदी. हाँ, सोम्या Didi, sorry. The another verb for वापस आना should be return. Deepika Didi, what should be the second form of return? The second form of return should be returned.
Roshni, what should be the third form of return? The third form of return should be returned. Good morning, Roshni. क्या पूछे? निधि तुम ही पूछ लो बेटा। Third form of return. नहीं, अगला सवाल दीपिका तुम पूछ लो। Roshni, have you written that? Yes, I have written that. Should I erase this? Yes, you should erase. Nidhi Didi, should I erase that? Yes, of course, you should erase that. Neha, have you written the first one? Yes, I have written the first one. Should I erase? Yes, Didi, you should raise. Roshni, have you written? Sorry, Neha, it's not Rosni's goals. Onisha Di, have you written the first, the last one? Oh, Deepika Di, have you written the last one? Please come again, Neha. Have you written, Deepika Di? Yes, I have written that. Should I erase the? Yes, you should erase. Soumya, have you written this? Yes, I have written that. Should I erase? Yes, you should erase. Now, who will ask the next question behalf of me? Sir, can I? Deepika, Okay, after you, Namrata. Deepika, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence is whose go is this? It is not interactive. Okay, sir. You can ask somebody, he will tell you, she will tell you. Nidhi, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was don't bother. That is takalluf na kare. It will. Roshni? Okay, sir. Today's interactive sentence is can anybody guess the meaning of he is no more? वे नहीं रहे. Yes. आज हमने मीनिंग पहले पूछ लिया, अब बाकी का तुम्हें पूछना है. दीपिका ने आंसर दिया तो दीपिका ही आगे बढ़ा है. Nidhi, what was the Hindi meaning of? नहीं, ये नहीं पूछना. It is done. अब अगला सवाल कौन पूछेगा? चलो, दीपिका थोड़ा मिस कर रही है, तो अगला सवाल कौन पूछेगा? Can I make? Yes, you can. Okay. नेहा, वाह. कोशिश करती हूँ. नमता दी, who is no more? नहीं, ये तो नहीं है बेटा.
Who will ask the next question? Sir, can I try? Yes, you can. Soumya. Which chapter is this sentence related? Yes. Take a name Didi, first Didi, which for somebody. Yes. Didi, which chapter is this sentence related? This sentence is related to uh, B chapter. Be present. अब अगला सवाल मैं करता हूँ. ये मैं कर लेता हूँ. किससे कर लूँ? रोशनी से. रोशनी, where is B in this sentence? Be in this sentence. अगर रोशनी जवाब नहीं दे पाती तो जो बिल्कुल सटीक जवाब देने की स्थिति में हो वो अनम्यूट करके मुझे सूचित. Sir, can I? Is सौम्या, where is B in this related. sentence? Sir, B is in the form of is in this sentence. Yes, this is absolutely complete answer. एक बार हिंदी कर लेता हूं मैं. सौम्या, इस वाक्य में B कहाँ है? सर, इस वाक्य में B इसके रूप में है. इस वाक्य में B इसके स्वरूप में मौजूद है. अपना रूप बदलता है वो. यहाँ इस रूप में आ रहा है. अब अगला सवाल जो क्रम से होता है वो कौन पूछेगा? What is the subject in this sentence, Namrata Didi? नम्रता दीदी. She is a subject in this sentence. Deepika, what is the verb? One question is missing, Namrata. Who will ask that missing question? Okay, Rashni. Can I ask? What is the main verb in this sentence? नहीं. Shivang, you ask to Neha Didi. Neha Didi, what is the helping verb in this sentence? The helping verb is no more. Very good. अब तुम किसी और से पूछ लो बेटा. सिंह. Deepika Di, what is the helping verb in this sentence? Is the helping verb in this sentence. Good. अब तुम सेम क्वेश्चन किसी और से पूछो. निधि से पूछ. Nidhi, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. Roshni, what is? Is main verb in this sentence. निधि, ये सवाल तुम Come again. Namrata, what is in this sentence? Is the main verb in this sentence. Deepika, what is the object? Namrata, you are not clearly audible. Please repeat your answer, putting your... Is the main verb in this sentence. हम उसका नाम एकदम स्लिप कर गए थे. अभी आया नाम. आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस. माउथ पीस. इट इज कॉल्ड माउथ पीस. जनरली जो पुराने काले फोन होते थे उसमें
इसको माउथ पीस कहते थे, माउथ पीस। ओके, नाउ करेक्ट। Namrata, ask the next question. Okay, she is disconnected. Who is rest and who is ready to ask the next question? Sir, I am rest for answer. Beta, question. Ask the question. I am asking the question to Roshni Didi. Roshni Didi, what is no more? What is no more? No more is a conjunction. Now you ask this question to Soumya Didi. Soumya, not Didi. Soumya Didi, what is no more? नहीं, सौम्या छोटी है तुमसे, सौम्या। Soumya, what is no more? What is no more? No more is adjective or noun. Correct. Adjective. This word completely working here as an adjective. ये शब्द यहाँ पे विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, विशेषता बतला रहा है कि जो करता है वो किस स्थिति में है, क्या है, कौन है, ऐसा बताता है, इसलिए ये विशेषण कहलाता है। और फिर से सुनिएगा अब, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई ये लाइन, मैं शुरू में दोहराता था। अंग्रेजी में एक ही शब्द एक से अधिक रूप में काम करता है या कर सकता है। वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कई रूपों में काम करता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा है दोस्तों। हमें अंग्रेजी में बहुत सारी वोकेबलरी कबाड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, थोड़े में काम चल जाएगा। बल्कि सीरियल की भाषा में बोले तो थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। जरूरत है। थैंक यू, थैंक यू। शिवांग क्यों इतना चुप है? क्योंकि आज रोशनी बोल रही है। शिवांग भी उस खगोलीय घटना में मौजूद था ना, इसलिए। चलो, अब हमें इसमें करना है क्रिएटिविटी। तो फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? यू विल हैव टू चेंज द सब्जेक्ट, फ्रेंड्स। और आगे बढ़ने से पहले ये उल्लेख कर दूं मैं कि यहाँ ही का अर्थ वे नहीं है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को मृत्युपरांत हम संबोधित करते हैं तो सम्मान के साथ संबोधन देना उचित होता है, इसलिए हम वे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वे नहीं रहे। सो हु विल स्टार्ट क्रिएटिविटी? You have to change the subject. Only subject. Can you try? सर सब्जेक्ट की जगह किसी का नेम भी रख सकते हैं। Soumya will start, beta. Soumya, your network is creating problem. Please come again. Put your mouthpiece near your mouth. You are not clearly audible, Soumya. Shivang will start. Soumya, take some time. Network will be okay. सुशांत सिंह इज नो मोर। सुशांत सिंह नहीं रहा। दीपिका दीदी।
नहीं, सीधे सीधे नाम मत लो, हु इज रेडी पूछो। अब तुमने नाम ले लिया तो दीपिका। Sir, it's compulsion to change the subject. No, this is creativity. It is not compulsion. Okay. Uh, it's so sad that he is no more. बड़े दुख की बात है कि वे नहीं रहे. Good. Uh, It will. who is ready? Who is ready? I am ready. Okay, after you, Roshni. Dilip Kumar is no more. Dilip Kumar नहीं रहे. Correct. Who is ready? I'm ready. Okay, Neha, after you. Sridevi is no more. Sridevi नहीं रही. Who is ready? I am ready. महात्मा गांधी इज नो मोर। महात्मा गांधी अब नहीं रहे। हु इज रेडी? I'm ready now. Her daddy is no more. उनकी दादी नहीं रही. This is Who very is ready? practical sentence, useful sentence. Who is ready? I am ready. Sorry to hear that. Priyanka's mother is no more. It is the truth news. She is my student. So I am very sorry to hear that. यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि प्रियंका की मम्मी अब नहीं रही. Who is ready? दोस्तों, मैं कैमरे को फ्लिप कर रहा हूं और आपको एक रेफरेंस दिखाता हूं. दीपिका, इसको पढ़ना. China wall is no more. वेरी गुड. दोस्तों, मेरा सबसे निवेदन है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी नम्रता से भी बातचीत हुई, तो नम्रता संयोग से ये उदाहरण अब सामने है कि वास्तव में इंग्लिश केवल अपने को इस 1 या 1.5 घंटे में नहीं सीखना है. हम बाकी के 22.5 घंटे भी इंग्लिश सीख सकते हैं अपने आसपास के माहौल से. और विशेष रूप से मैं नेहा, निशा और रोशनी से कहना चाहूँगा कि ये हिंदी न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ बेटा, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की नहीं. और इसमें इंग्लिश का वाक्य हिंदी में पूरा तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है. इसमें मैं हिंदी का भी थोड़ा सा आपसे आपका टेस्ट करना चाहूँगा. ऊपर की जो हरे रंग की जो लाइन है वो दिख रही है कि नहीं है विजिबल? Yes, sir, it is visible. पूरी दिख रही है बेटा? पढ़ सकती हो? Yes, sir. पढ़ो. धराशायी हुई TNT की दीवार, लोगों ने जाहिर की खुशी. वेरी गुड. किसी का नाम ले लो. दीपिका. धराशायी हुई PNT की दीवार, लोगों ने जाहिर की खुशी. निशा. धराशायी हुई PNT की दीवार, लोगों ने सर लास्ट का मुझे नहीं दिख रहा है. किसी और का नाम ले लो, सुन के बोल देना बेटा. निधि. धराशायी हुई PNT की दीवार, लोगों ने जाहिर की खुशी. रोशनी. धराशायी हुई PNT की दीवार, लोगों ने जाहिर की खुशी. नेहा.
धराशायी हुई पीएनटी की दीवार, लोगों ने जाहिर की खुशी। निशा दी। सॉरी, ओके। धराशायी हुई पेंटी की दीवार, लोगों ने जाहिर की खुशी। ओके, हु इज रेस्ट? बिना देखे बोल दे। आई एम रेस्ट। धराशायी हुई पीएनटी की दीवार, लोगों ने जाहिर की खुशी। सोमिया दीदी। धराशायी हुई पीएनटी की दीवार, लोगों ने जाहिर की खुशी। दोस्तों, जो जबलपुर में जानते हैं तो एक पीएनटी की दीवार हुआ करती थी, एक विभाग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। एक समय था जब यहाँ हमारे जबलपुर से टेलीफोन से संबंधित सारे उपकरण की फैक्ट्री थी और निर्माण होता था, और पूरे देश में उसका वितरण होता था। फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज और खुल गई, तो वो फैक्ट्री की उतनी जरूरत नहीं रह गई जितनी पहले थी। और उसके बाद उस फैक्ट्री के उस पार बहुत सारी कॉलोनियां बस गई, तो लोगों को वहां बहुत दिक्कत होने लगी। पतली सी दीवार थी और वहां पे एक साईं बाबा का मंदिर भी है, तो गुरुवार को बहुत ज्यादा ट्रैफिक हुआ करता था। चलिए इसको छोड़ देते हैं। आपने इस सेंटेंस में एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट का प्रयोग देखा। तो वैसे तो नॉन लिविंग प्रैक्टिकल नहीं होता, हम किसी व्यक्ति के बारे में ही करते हैं, लेकिन इस प्रयोग को देख के अगर आप चाहें तो आप में से 2-3 लोग एक एक नॉन लिविंग का सेंटेंस बनाए। निर्जीव कर्ता, नॉन लिविंग सब्जेक्ट। आइसक्रीम इज नो मोर। अब आइसक्रीम नहीं रही। व्हाट यू विल ईट? इसको थोड़ा सा हम क्या खाओगे? प्रैक्टिकल बनाने के लिए दोस्तों ऐसा कर देते हैं, एक एक्सटेंशन लगा दो नम्रता, इन द फ्रिज, ऐसा कर दो। आइसक्रीम इज नो मोर इन द फ्रिज। फ्रिज में अब आइसक्रीम नहीं रही। हु इज रेडी? दैट कॉलेज इज नो मोर। वह कॉलेज अब नहीं रहा। माई फोन बैटरी इज नो मोर। मेरे फोन की बैटरी नहीं रही, खत्म हो गई। हु इज रेडी? आई एम रेडी। माई पेन निप इज नो मोर। मेरे पेन की निप अब नहीं रही। निशा दी। दोस्तों एक सेंटेंस सुनिएगा, प्रैक्टिकल है। नाउ वोडाफोन एंड आइडिया are no more separately. They have been ऐसा निशान दीवारों पे लगे देखे होंगे, पोस्टर देखे किसी ने? हाथ उठाओ। तो वोडाफोन और आइडिया दोनों का मिलन हो गया, तो आइडिया सेपरेट नहीं रह गया, वोडाफोन सेपरेट वोडाफोन नहीं रह गया, VI हो गए, VI। और उन्होंने आई जानबूझ के उल्टा इसलिए बनाया क्योंकि नहीं तो इसको वो लेटर भी समझ लिया जाता। ये 5वीं कहलाती और एक लाइन लग जाए तो ये 6वीं कहलाती रोमन, और ये 7वीं ऐसा। तो इसलिए उन्होंने संभवतः और नई डिजाइन के चलते भी ऐसा किया होगा, वोडाफोन एंड आइडिया। Sir, can I one more? Can I? One more sentence. Can I? Can I make one more sentence? Yes, you can make one more sentence. Uh, mm,
VSNLs, antennas are no more. BSNL के एंटीना अब नहीं रहे, यस, घर घर पे लगे रहते ना सर वो। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। Can I make one more sentence? My mobile data is no more. मेरे मोबाइल का डेटा अब नहीं रहा. Who is ready to make new sentence? The charge was 10 rupees, now 11 rupees. We are using Jio. Thank you, Sivang. Sir, this is idiom has been done. Oh, it is given. Yes, sir, you have given it. तो बताओ बेटा, इसको हमने किस इंटरेक्टिव के साथ दिया था, तो हम चेंज करें। कोई भी बता दे, इसके साथ इंटरेक्टिव सेंटेंस कौन सा? सर मैंने ये इडियम नहीं लिखा। चलो सबसे पहले हम नेहा से पूछते हैं। नेहा, इसका हिंदी बताओ बेटा। वेल आदि सफलता, अच्छी शुरुआत की खूबसूरती। अच्छा, नम्रता तुम्हें हिंदी याद है? I also know the हिंदी। वो कुछ हाँ नम्रता बोलो। अच्छी शुरुआत का मतलब है काम हो गया। अच्छा, ऐसा तुमने लिखा हुआ है? आधा काम, अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम हो गया। ये ऐसा लिखवाया है अपने हिंदी में नम्रता? यस सर। तो फिर ये तुम्हें कहीं और से मिला है। अब हम जो हिंदी लिखवाने जा रहे हैं वो हिंदी भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। आज हम शुरुआत निशा से कर रहे हैं। निशा बेटा, एक हिंदी शब्द जरा पढ़ के दिखाओ। निशा, ये वाला हिंदी शब्द क्या लिखा है? निशा, am I audible to you? Yes, sir, you are audible too. ये पढ़ के दिखाओ, क्या लिखा है हिंदी का शब्द? तो घोतक। वेरी नाइस। नेहा, तुम पढ़ के दिखाओ। घोबक, घोतक, अच्छी शुरुआत आदि सफलता की घोबक होती है। चलो नम्रता, तुम पढ़ के दिखाओ इसको। शुरुआत आधी सफलता की दो तक होती है। हाँ ठीक है। दीपिका, इस दो शब्द तक। को हाँ, थैंक यू। अच्छी शुरुआत द्योतक। निधि, द्योतक। शिवान, द्योतक। सौम्या, सर द्योतक। ओके।
ओके, सौम्या, इसका हिंदी अर्थ मालूम है? सरल हिंदी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्योतक? किसी और नो को सर। पता है? निधि को तो बताया होगा क्लास में, और शिवांग को। किसी और को पता है? दीपिका, नम्रता? It's like indication, sir. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका अर्थ होता है संकेत। और ये जो शब्द बना हुआ है दोस्तों, ये आधा दा और या से मिलकर बना है। तो ये हो गया द, और ऐसे करके या बना है। तो ये दा आधा और आधा या मिलकर बना शब्द है। वैसा टाइपिंग लेटर में संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरह से उसको बनाया। और आज इसको निशा ने गलत बोल दिया, या नेहा, या किसी ने भी गलत बोला, लेकिन हम तुम लोग को 3-4 शब्द और बता रहे हैं जिसमें तुमने इसको कभी भी गलत नहीं बोला, हमेशा सही बोला। जैसे नेहा, ये क्या लिखा है? निशा? विद्या। और ये विद्यालय। और ये इन सब में तुम लोगों ने हमेशा इस शब्द को सही बोला है, क्योंकि ये ज्यादा प्रचलित है, और ये वाला कम प्रचलित है, इसलिए तुम इसको घा बोल गए। तुम इसको घा समझ रहे थे। तो बच्चों, इंग्लिश के साथ साथ थोड़े से तुम्हारे हिंदी पर भी हम इस तरह से कर लिया करेंगे कभी कभी। तो ये द्योतक है। आज आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को संभल के बोलना है। तो दीपिका से शुरुआत करते हैं। Well begun is half done. अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। नम्रता। Well begun is half done. That is, अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। निधि। Don't worry, go ahead. Well begun is half done. चिंता मत करो, आगे बढ़ो। अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। शिवांग। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। सौम्या दीदी। Well begun is half done. अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। Who is rest? I'm rest. Rest. Well begun is half done. Sorry, Well begun is half done. अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। बस सर। निशा दी। ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक निवेदन किया हिंदी अखबार दिखा के, और उसमें हमने विशेषकर नेहा का नाम लिया और रोशनी का नाम लिया था, या निशा का। उसका कारण यही है बच्चों, हम इस शब्द को बरसों से बोलते आ रहे हैं। नहीं नहीं, हाफ कर दे इसको, या हाफ हाफ, ऐसा बहुत बार बोलते हैं। लेकिन जब हम उसकी स्पेलिंग देखते हैं तो हम पूरी स्पेलिंग बोलने लग जाते हैं, और हमसे गलती हो जाती है। जबकि नेहा का नंबर पहले नंबर पे नहीं था, लेकिन नेहा की जिम्मेदारियों के बारे में निधि ने बताया था कि काफी सारी जिम्मेदारियां ओढ़ ली हैं नेहा ने, ओढ़ के रखी हैं। उसके कारण उसका कंसंट्रेशन बिखरता है। आप सबने महसूस किया होगा कि उसका एक कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, वहीं पे सारी आवाजें आती रहती, तो उसके कारण परिणाम जो है प्रभावित होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? I am rest. Well begun is half done. अच्छी शुरुआत अच्छी सफलता की द्योतक होती है। देख के तो गलत नहीं बेटा। Sorry, come again, please. निशा दी, देख के गलत पढ़ लो एक बार। अच्छी शुरुआत अच्छी सफलता की द्योतक। Sorry. देख के तो गलत बोलो। दो द्योतक होती है। Please come again. Okay.
अच्छी शुरुआत अच्छी सफलता की संकेत होती है। सॉरी। दीदी देख के गायब करो, देख के। देख के कम तो अगेन निशा। क्या बात है। अच्छी सफलता अच्छी शुरुआत की अ, द्योतक होती है। सॉरी निशा। ए, दोस्तों यहाँ हम विराम देते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप कंटिन्यू रखिए जब तक निशा सही ना बोल ले। निशा ने तो आज चश्मा भी लगाया हुआ है, हालांकि नहीं लगाया है। चलो बढ़िया है। तुम अपोजिट लाइट बैठती हो, उससे एकदम कल्लू कल्लू दिखती हो। लाइट सामने होगी तो गोरी गोरी लगोगी। चलिए आप करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू Namrata, सर। what was your second song? Are you there, It was, Namrata? सेकंड yes, I am here. Second song. Sivang, what song I have sung there? लास्ट नाइट। Yes, he remembers. Yeah, it was the last night. Okay. It Firstly, was please, an English song. I will share to you if you Deepika, want to. 1 minute. Deepika, 1 minute, please. Firstly, Nisa has to rectify her mistake. ओके। विल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत अच्छी सफलता की। हे भगवान, सॉरी, यही गलती है। कोई भी मदद कर दे एक बार प्लीज। मैं करूँ हाँ, क्या? I मैं think ओके बोलूं, निशा, मेरा नहीं हुआ। repeat after me. ओके रोशनी, वन। यस यस। वेल बीइंग इज हाफ डन। सॉरी। अच्छी नो। oh Sorry, my come God, again. Rosni. वेल बिगन इज हाफ डन। So अच्छी there you शुरुआत are. अच्छी सफलता की द्योतक सॉरी। होती है। Sorry रोशनी फॉर हिंदी। द्योतक अच्छी शुरुआत। Come सौम्या again. दीदी सॉरी इज सॉरी रस्ट। सॉरी 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 सॉरी। अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। सो देयर यू आर। So there you are. Please It's repeat. Yeah, my please. turn. It's my turn. It's Uh, Nisa's goal. well Sunita's begin. goal. Okay. विल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। नाउ सो देयर So यू आर। there So you there you are, are. Nisha, So finally. there you are. Well begin सुनते is सुनते मैं भी half. कंफ्यूज हो गई थी उसमें। दीदी can I? Well begin Yeah, is yeah, half. Neha. अच्छी शुरुआत आदि सफलता की द्योतक होती है। थैंक यू। Okay, now Namrata's song. Please, Namrita, please sing, please. I have to Okay. hear your song. First one or last one? Last one. Your English song. Okay. It Okay. was last night I dream of some patio. Just like never go and knew this song. Young girl with eye like the desert. Oh, I don't know. I just forgot the lyrics. वाह That नम्रता। I remember, but it was just like this. Uh, uh, can anyone else try any I English think song? Deepika, I think you sing English song, so please, Okay, we okay. eagerly want to listen. Uh, actually, I recall two lines only. Okay, there is only a two lines before Hindi song. Okay. It's okay, na? Well begun is half done. Yes, शुरुआत yes, तो yes. करो. Signing in the sailing felt like while upon the ocean. Come on, feel me, heal me. Done. वाह दीपिका। It's Nidhi goes. Yes. I forgot my song. Actually, when I joined the Any English class,
poem, rhymes, whatever. Christchurch, Right? prayer, whatever you want. Okay. Which one? शिवांग, जब तक पास शिवांग सुनाओ जब तक आप. Soumya is also there. Soumya, you want to sing any song? I think she's not there. Okay. शिवांग Soumya is शिवांग there? Okay, Shivang. शिवांग ने इतना गाना गाया, मैं तो नहीं सुनना चाहती हूँ बिल्कुल भी. यदि शिवांग गाएगा तो I will left. ऐसा क्या हुआ था नम्रता कि तुम सुनना नहीं चाहती? प्लीज टेल मी. I don't know what was the song. तुम केवल पहली लाइन उसको बोलो ना, क्या थी फर्स्ट लिरिक्स, फर्स्ट लाइन. प्लीज शिवांग, केवल पहली लाइन गाना, उसके आगे बिल्कुल मत बताना. प्लीज शिवांग, which one song please? I also forgot. Don't cheat शिवांग, don't cheat please. नहीं, मैंने भी शिवांग का गाना सुना सर के बर्थडे के दिन. दीपिका प्लीज टेल मी which one song? बार बार ये दिन ये आए. Please शिवांग, don't worry शिवांग, amen die. अरे भूल गए दीदी, I forgot. Okay, say thank you God. Okay, say thank you God. Thank you. Your school's prayer. अरे स्कूल पे 2 साल के अंदर सब भूल गए. And your pledge. What is your pledge? Which pledge you done in your school? कोई सी नहीं होती. कोरोना जब से आया जब से सब बंद. You forgot only, but होती है. नहीं होती, अब बंद हो गई. Now, what to do? नम्रता ने आज कहा है, बहुत ही अच्छी बात है. नम्रता ने कहा है कि सभी कोशिश करिए आपस में भी ना, ये 5-10 मिनट जो बात के मिलते हैं, हम गलत बोलेंगे लेकिन बात इंग्लिश में ही करेंगे. वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया रख लेते हैं यहाँ पे, सभी केवल इंग्लिश में ही बात करेंगे. इसका फायदा ना, मतलब जब ऑफलाइन क्लासेस होती है ना, तो इसका फायदा उस टाइम पे होता है. जैसे पहले कोई पहुंच जाता था, मेरा यही रहता था हमेशा, मैं 15 मिनट पहले जाके 15 मिनट हम जो सीनियर्स बैठे रहते थे उधर, सुमित भैया होते थे, समटाइम्स नेहा या जया ऐसे होते थे, तो हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर लेते थे उस टाइम पे. निधि, you know, at there you are always late. बट इधर ऐसा है कि अपन लोग बाद में कर सकते हैं प्रैक्टिस, है ना. और ये मतलब ऐसा टाइम होता है, फ्री टाइम रहता है सभी का. हाँ. और अच्छी बात है, नम्रता ने आज कहा भी कि हम गलत और जो जहाँ पे अटक रहा है तो उसको बताएं भी कि मतलब यहाँ पे आपकी गलतियां होती है. और फिर मैंने आज नेहा को भी बोला कि डर डर के मत बोला करो, बिल्कुल जो बोलना है चाहे गलत हो चाहे बिल्कुल झिझक के वैसा बोला करो. मतलब ऐसा लगता है ना कि वो आंसर देती तो बिल्कुल डर डर के चुप चुप हो के, थोड़ा रुक रुक के, और स्लो कर लेती, उसकी वॉल्यूम बिल्कुल स्लो हो जाती है. नहीं उस दिन ना सर ने रोक दिया था, इसलिए मुझे लग रहा है कभी कुछ नहीं होता है. डांट भी देंगे सर तो कुछ नहीं होता है, कौन सा अपन को लग जाता है. नहीं कुछ नहीं होता है. सर बोले थे ये मतलब प्रोपोजिशन गलत लगाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी. एक्चुअली लिसन नेहा, मैं ये कह रही हूँ, आई वांट टू से दैट कि जब हम कोई चीज सीखते हैं ना, तो गलतियां होना स्वाभाविक है. तो यदि जस्ट चिल आउट, क्योंकि हम सब यहाँ पे लर्नर है ना, एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो हेजिटेट बिल्कुल मत हुआ करो. क्या गलत बोलोगी, इंग्लिश ही तो बोल रही हो, इट्स ओके ना, इट विल डू, सब चलेगा. इसलिए तुम बिल्कुल आराम से बोला करो, बिल्कुल फ्रैंकली तरीके से. इसलिए मैं चाहती थी कि हम एक दूसरे से फ्रेंडली हो जाएं. तो यदि हम फ्रेंडली हो जाएंगे तो you know, Namrata, today I feel that we have to prepare our intro first.
जो न्यू आए आज, उन्होंने कितना अच्छा इंट्रो दिया अकॉर्डिंग टू अस। हम लोगों ने बहुत ही वर्स्ट किया आज परफॉर्म। दीदी, शी इज नॉट न्यू. सौम्या दीदी इज नॉट न्यू. बट इन आवर बैच दे आर न्यू ना, इन आवर बैच In, at in their our batch, only they are new. at their only we have to prepare our intro first. Okay, so you prepare your intro, and when you come in join a class, so you can give, है ना? Anybody can इंट्रो में introduce, and I think we नम्रता should update our intro. मैं ये बता रही थी नम्रता कि इंट्रो में ही इतनी ज्यादा मतलब प्रोग्रेस होती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम लोग का डेली का काम होता था, जब क्लासेस लगती थी ना, फर्स्टली मतलब पहले से पहुंच जाते थे तो सर आधे घंटे लेट आते थे। उस टाइम पे हम लोग को क्या होता था कि हम लोग इंट्रो बोलते थे, और मतलब 15 दिन तक तो कोई सॉरी नहीं बोलता था। उसके बाद फिर जो मतलब सॉरी बोलते थे, सुमित भैया रहते थे या कोई भी, ऐसे करके हम लोग की बहुत काफी हद तक कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था और बहुत इंग्लिश सुधर गई थी, बहुत हद ऐसे हम लोग को ना तरुण भैया तक। बहुत उन्होंने एक्सप्लेन किया था हम बहुत लोग कुछ को। मतलब इंट्रो से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। मतलब छोटी-छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो बहुत सुधर जाती हैं। जैसे कि अभी जो हो रही है ना, जैसे नेहा से कभी इज़ में हो गई थी उस टाइम पे, ऐसे ये सारी गलतियाँ एस में एपॉस्ट्रोफी एस ये सब कुछ लगाने में, ये सब चीज़ें इंट्रो में बहुत सुधर जाती हैं। वही मैं निशा से भी बोलना चाह रही, ये भी मतलब बीच-बीच में ब्रेक अब बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि अब मेन जो है अपनी क्लासेस शुरू हो गई तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर ज़रा भी लॉस, बहुत लॉस हो जाता। अपन कितने वीडियो देख लें, वो प्रोसेस अपन को नहीं मिल पाती है। वीडियो देखने से वो मतलब ये तो है कि ये छूटा, बट जो प्रोसेस होती है वो नहीं मिल पाती अपन को, ऐसा रहता है। सर से भी मैंने आज इस बारे में बात की थी कि सर कैसे हम अपनी इंग्लिश जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ही सजेस्टेड टू मी वी शुड टॉक टू ईच अदर whatever we get from the class, so we should need a practice. So you know ki, I learned the things but I cannot practice with my mother because she don't know ki what I have learned in the class. So we can also chat with you and Deepika and all buddy. So why we are not starting practice whenever we get time? So I think sir has given too many things that we can speak to each other, but when we shut down our mouth, so I don't think so we can develop it. Practice is more important. So actually मैं ये रूल बना रही थी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलो, बट प्लीज हिंदी मत बोलो, प्योर हिंदी की जरूरत नहीं है। Without practice we cannot learn anything without practice। मतलब चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नहीं सीख सकते अपन विदाउट प्रैक्टिस के। जब तक जैसे खाना ही बनाना है, एक दिन में अपन कुछ भी नहीं सीखते, डेली बनाने लगते तो वो चीज़ की मतलब अपन को हैबिट हो जाती, अच्छे से आने लगता है। जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी तो क्या था कि सीख तो ली थी, बट जब चलाते थे ब्रेक किया तो फिर उतना नहीं आता था। बट जब रेगुलर मैंने उसको किया तो फिर अब ऐसे आने लगी, चाहे कुछ भी चला लूं, कैसे भी चला लूं, ऑटोमेटिकली अंदाज पड़ जाता है उस चीज का। ऐसा रहता है, विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ भी नहीं सीख पाएंगे अपन लोग। Now you drive truck and tractor also. Are you? So we can learn this thing also. This is a very good example which has given by Nidhi. Without practice we can't do anything. Even we can make a chapati. So why we are not following this rule? If you speak, please speak English. If you're not able to pursue your things, understand to give the things, so then that time you can speak Hindi. Samne wala the buddy are not getting the things, only that situation. बस प्लीज hesitate नहीं हुआ करो। दीपिका वर्मा, निशा एंड रोशनी प्लीज प्रकट विथ अस। पूरा नहीं समझ में आया तो प्लीज प्लीज प्रकट हो। रोशनी प्लीज प्रकट विथ अस। प्लीज अपीयर।
Appiya, Katato. Roshni, are you there? As far as I think, she is not there. She is not visible to us. That is whenever you are not comfortable, then say in Hindi. But if you are comfortable in a wrong way also, speak in English only. That's it, na? Exactly. Exactly. You are speaking very well, Deepika, and Nidhi also is speaking very well. But I don't Nidhi know is why we are not speaking. Firstly, we should develop our confidence. Then we try to speak. Okay, मुझे I always मतलब tried with our kid. हमेशा आदि के साथ ही करती हूँ। अपने पास तो इतना अच्छा है कि मतलब बच्चे हैं, गलत भी होगा तो रोकेंगे टोकेंगे नहीं, पूरी इंग्लिश उन पे उतार दो, गलत गलत सलत My सब कुछ। daughter is too good. My daughter हाँ is too good to speak in English. हाँ, She वो is बड़ी very होगी। fluent. She is very fluent. Her तो आपकी grammar, everything. बहुत अच्छा है दीपिका, मतलब क्योंकि जहाँ गलत भी होगी तो बच्चे बताएंगे अपन को, क्योंकि अपने से अच्छे उन लोग को आता है उसने अभी डेली। बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताया. है। Just a minute, I forgot that it's raining cat and dog. Very nice example she gave me, but I actually right now I forgot. Whenever I get this, I will send it to in a group. Okay. दीपिका, सॉरी फॉर फॉरगॉट प्रोनाउंसिएशन, ऐसे ही अपन को टोकना है एक दूसरे को, है ना? Yes, yes. Why not? I accept this. Why not? क्योंकि जब हम लोग कोचिंग मतलब जाते थे ना, तो सुमित भैया, तरुण भैया ऐसे ही टोक टोक एक एक चीज को सुधारा था, काफी हद तक इम्प्रूव हुआ। हाँ हाँ, मतलब प्रोनाउंसिएशन भी अगर गलत, क्योंकि एक एक वर्ड में सा और शा, ये प्रोनाउंसिएशन ये भी सिखाया हम लोग को सर ने, और बा वा, ये मतलब एक एक चीज प्रोनाउंसिएशन वहीं से मेरी सुधरी है, नहीं तो मतलब काफी बिल्कुल सेम ऐसे ही थी। प्रोनाउंसिएशन भी सर ने सिखाया, और साइलेंट वर्ड को कैसे बोलना है, और कैसे मतलब वो इंग्लिश मीडियम टाइप कैसे बोलना है, नहीं तो हम भी ऐसे ही आता था सेम बिल्कुल। That's why we need practice, na? And I also never mind, Nidhi, whenever I get stuck and I made mistake, you always say sorry. I like it because here we are not for showing our attitude and ego अरे that नहीं girls नहीं, have क्या it. होता, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये क्या था कि नम्रता, इधर तो ये ऑनलाइन क्लासेस में उतना वो नहीं है, बट सर जो सॉरी नहीं बोल पाते तो सॉरी के लिए दंड मिलता था, जिसने सॉरी नहीं बोला, तो वो क्या हैबिट में आ गया है। और फिर अपन से मतलब जैसा थोड़ा थोड़ा बनता है तो इधर बोल देते तो सर कुछ नहीं बोलते। अब जैसे नेहा और निशा थोड़ा झिझक झिझक के बोलती तो सर बोलती कि उन लोग को बोलने दो, उनके हम भी मतलब क्लास के उसी के उस पे चल रहा है बेस पे, मतलब जो एक्स्ट्रा भी आता है तो वो नहीं बोलते, जैसा क्लास के उसी के अनुसार हम बोलते हैं और वैसे ही चलते हैं, मतलब इजीली जैसा है वैसा ही। मतलब हम लोग को सडनली पता नहीं कैसे आ जाता है, वो टंथ पे ही आ गया है, सॉरी आ गया है। आदि भी गलत बोलेगा सॉरी, तुरंत सॉरी बोलेंगे, गलत पढ़ेगा तुरंत सॉरी बोलेंगे, वो आ ही गया है। बट एक बार सर ने मतलब मैं बोला ना कि बेटा एकदम से सॉरी नहीं बोला करो इन लोगों को, तो हम फिर उन लोग को नहीं बोलते हैं ज्यादा, और अपने को इतने को बोल देते, बट वो अपने लिए अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है कि वो गलतियां सुधर जाती हैं। And Nidhi, I'm too eager to meet you today. But any personal problem, you are not coming to the class. That's why we will not meet today. But hope so. In our next meeting, we will meet. आफ्टर 1 मंथ है ना। After मेरे 1 को तो month? हाँ मेरे Okay, sure, we will. Nice to meet you. I have to go. Today
today. Where have you to go? My first Purnima. Come again? Your voice is chopping. Where have to you go? My fast today, Nidhi. Oh, it's your fast today. Okay. 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 Hmm. Bye guys. Bye. Bye. Rosni, are you there? Okay, ma'am is also there. Ma'am is there. Ma'am, please talk to us now. No. I think ma'am is not there. She is online But also. only recording is going Yeah, on. everything. The recording is going on. Ma'am will. Are there too? Yes, ma'am will trim this. This recording will not be shared by ma'am. I know. It will trim na. Then after she share. It's our plan which we have made. Sivang is also left. Sorry, Sivang left the class. एक्चुअली दीना हम लोग को तरुण भाई ने कॉम्पिटिशन हम लोग को जगाया था इंग्लिश बोलने के लिए। हमने टॉक टॉक के हम लोग को बिल्कुल सही सही तरीका सिखा दिया था। तो आई विल completely question and answer. नहीं बाय प्रैक्टिस उस टाइम पे अपन लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे। सुमित भैया से, तरुण भैया से बहुत प्रैक्टिस हो जाती थी अपनी। पहले से जाते थे तो बहुत प्रैक्टिस करते रहते थे बैठ के। और जो ना सर पे बोर्ड पे जो सर के वो मतलब मीनिंग्स लिखी रहती थी, हम लोग उस पे भी प्रैक्टिस कर लेते थे उधर बैठ के। मतलब डेली मतलब 2-3 सर उधर वो बोर्ड पे जो मीनिंग्स लिखाते थे तो लिख देते थे, तो उस मीनिंग्स पे प्रैक्टिस हो जाती। हाँ, बहुत प्रैक्टिस से ही हम लोग तो सब कुछ सही हुआ था। फिर बीच में लेकिन फिर जैसे प्रैक्टिस छूट गई और कोविड लग गया प्रैक्टिस में। तो नहीं, वैसे मेरा ये भी था ना कि वी शुड प्लान टू मीट whenever we get time. So we should meet and practice with each other. Whenever we meet, so I think we should not speak Hindi. The atmosphere is very positive, na Namrata? Yes, this is, and we should utilize the things. Very positive atmosphere at sir's home. At the class. Sir home, yeah. Yes, the atmosphere. It was like a temple. Yes. It's amazing. The atmosphere is fully positive. Sukoon means peace of the things, positive, yeah. Very, everything was very affirmative. Very peaceful. There is a temple at there, but the atmosphere inside the house is very peaceful. I also observed the things. It was very peaceful. It was very affirmative and sound like a temple. Whenever we go temple, we feel sukoon wali feeling. So it was that. It was about me, what I felt there. The area is very crowded, but inside the house is very calm, very peaceful, very quiet, very nice. Yes, it was. Nidhi was not there. I'm missing her. I also miss Neha and Nisha. If they still there, so we have taken a class offline. Means it is my wish कि काश हम लोग वहाँ पे क्लास ले पाए कि I wish we could take a class offline or with our group. But Deepika's school in the morning, na? Yes, 7 to 12. After 12, I'm free.
after that you also have very many works. Means working days, I don't think so ki it is possible.